Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. Hope you are enjoying the studies as well as your life in a very new mode. Sometimes some things happen which we have never expected and never dreamed of. Nowadays are like so for everyone. But instead of complaining about the things, take everything in a positive way. Well, dear, we are doing chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. First part we have done. First 3 pages have been done by us. Today we will try to complete this chapter. Well, I hope that up to now you have understood the story. Okay, how the author of this story, Gordon Cook, he wants to duplicate the world voyage done by James Cook 200 years ago. And here he is not only all alone with his wife and 2 children. He decided to do it. And for it he had done a lot of hard work. For 16 years he worked hard for it. He prepared himself. He built up his boat and he had learned whatever could be learned for such kind of situations. And the very first phase of his journey, his voyage, that was very smooth, very pleasant. No problems were there. But from the Cape Town, when he started his second phase of voyage, and he already knew it, it shows his planning, his study, that now he is going to face the roughest sea and what kind of different problems can be there for him. And for this purpose he had hired 2 persons, and they were very helpful till now. In the way they had performed their job, they had done, and the kind of situation the author is already expecting that he would face in sea, everything was there like that. Strong waves, gales, very roughest sea, very tough situation for all of them. Injuries, approaching death, survival, all are there. And how this family, this person is struggling for their survival, their lives, let's all about it. Now come to the part where we have left in our previous lecture, that he was able to discover that is part of the ship, below part, that was damaged, that is right side of the ship, that was held by only a few covered partitions, otherwise it was ready to fall, and in that case nothing would have been left. Now after that strong wave, what had happened? We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. और कहता है वो जो स्ट्रॉन्ग वेव, जो बिल्कुल जिसने पूरी तरह से वेव वॉकर को पलट करके रख दिया था, ऑथर जो है वो भी बाहर पानी में डूब रहा था और उसे लगा कि हिज एंड वाज नियर। उसके बाद 15 घंटे बीत चुके थे, सरवाइव कर पाए ये 15 घंटे, और किस तरह से किया, सारी रात जो है ये पंपिंग आउट करते रहते हैं पानी को, दैट वी हैड ऑलरेडी रेड। कहता है लेकिन जो वेव वॉकर, इनकी जो बोट है, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो लंबे समय तक जो है इस तरह से जुड़ी रहे। जैसे ऊपर बताया गया कि उसका जो साइड बोर्ड पार्ट है वो लगभग टूटने वाली स्थिति में था, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। वो कहता है ऐसा नहीं था कि वो बहुत लंबे समय तक हमारा काम चला सके, कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं इस स्थिति में, ऐसा नहीं था। तो कहता है चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और कहता है फिर मैंने अपने चार्ट्स वगैरह को चेक किया, सारी चीज़ें कैलकुलेट की, और कहता है 2 आइलैंड्स थे जो लगभग कुछ
100 किलोमीटर्स की दूरी पर रहे होंगे ईस्ट में। इट मीन्स कि दैट दे कुड गेट हेल्प फ्रॉम देयर, कि वहाँ उन्हें कोई मदद मिलने की आस थी। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया तक तो उनका वो बोट ले जाने में उनको कामयाब नहीं था। तो वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, और उनमें से जो एक आइलैंड है उसका नाम है आइल एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जहाँ फ्रेंच ने जो है अपना साइंटिफिक बेस बनाया हुआ है। अवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। और कहता है अगर हमारे लिए जीवन की कोई उम्मीद थी तो वो यही आइलैंड था, और इसको यहाँ पिन प्रिक्स की बात की गई है इन द वास्ट ओशियन। और ऐसा क्यों कहा गया है वास्ट ओशियन? आप समझते हैं विशालकाय समुद्र की बात की जा रही है जहाँ चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ भी नहीं, और वो भी थोड़ी बहुत दूर नहीं, मीलों दूर। पिन प्रिक्स, जिस तरह से हमारी जो कोई भी पिन होती है, ऑल पिन मान लीजिए, सुई मान लीजिए, उसकी आगे वाली जो नोक है बिल्कुल, यानी कि इतने बड़े समुद्र में वो उस पिन प्रिक्स की तरह से है। यानी कि अगर हम कहीं उस सुई का कोई निशान बना दें उसकी आगे वाली जो टिप है उसका, और उसको किसी चीज़ के ऊपर कहें कि इसका साइज़ क्या होगा दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में, तो वहाँ जो है वो आइलैंड बिल्कुल उन पिन प्रिक्स की तरह से थे जिन दो आइलैंड्स की बात की जा रही है उस वास्ट ओशियन में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और इसके बाद जो है वो कहा जा रहा है, जो बताया जाता है कि हमारी जो जिस तरह की स्थिति है कि जो हवा है जब तक वो कमज़ोर नहीं हो जाती, वो थोड़ी ही धीमी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हवा उनकी कम होगी, धीरे होगी, तो वो अपने जो सेल है उसको हॉइस्ट कर सकती हैं। सेम मास्ट के ऊपर जो लगाया जाता है कैनवस वगैरह, आपको जो पहले बताया गया है वही चीज़। और तो कहता है कि हमारे चांसेस जो थे वास्तव में बहुत कमज़ोर थे उस तेज हवा के साथ जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और कहता है इसके साथ साथ ये जो ग्रेट वेव जिससे उनका शिप डैमेज हुआ, बोट डैमेज हुआ है, जो कहता है उसने हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो हेल्पिंग इंजन था, वो भी आउट ऑफ एक्शन था, वो भी काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली। ऑन Jan 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और कहता है 4 जनवरी की बात है, 36 घंटे तक लगातार वाटर को पंप आउट करने के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए थे जहां पानी का लेवल कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। एंड नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और कहता है अब सिर्फ हमें यही करना था कि अपनी स्पीड को बनाए रखना, जितना पानी अंदर आ रहा है उसी को बाहर फेंकना था। पहले तो क्या था कि ज़्यादा पानी भर गया था, उसको कम करना था। अब लेवल ऐसा था कि जो पानी अंदर आता जा रहा है हम उसके साथ अपनी पेस को बनाए रखें, उतना ही पानी बाहर फेंकते रहें, तो हम बिल्कुल ठीक थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और जो मेन मास्ट है उसके ऊपर सेल नहीं लगाया जा सकता, जैसा भी आपको समझाया मैंने थोड़ी देर पहले कि जो हवा है वो उसकी फेवरेबल डायरेक्शंस में और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं थी। क्योंकि अगर उसकी वजह से क्या होता, जो प्रेशर पड़ता रिगिंग के ऊपर, रिगिंग जो उसकी बोट को जो उसको प्रोपेल करने में हेल्प करती है, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और इसकी वजह से जो डैमेज सेक्शन है वो उससे टूट करके दूर हो जाता। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब। तो वो स्टॉर्म जिब के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, जो काफ़ी कम हाइट पर और छोटे साइज़ का लगाया जाता है। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। और कहता उस डायरेक्शन में जहाँ मुझे लगता था, मैं जैसा मानता था कि वहाँ 2 आइलैंड होने चाहिए, जिस तरह से उसने अपनी जो मैप रीडिंग की है, जो अपने चार्ट्स वगैरह के ऊपर पढ़ करके कैलकुलेशंस की हैं उनके अकॉर्डिंग। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और उसके बाद जो ऑथर है उसकी वाइफ जो है वो कुछ कॉर्न बीफ वगैरह जो है, मीट वगैरह, इसके अलावा कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें खाने के लिए ले आती है। और ऑथर हमें बताता है कि इन्होंने 2 दिन के बाद जो है अपना पहला खाना खाया। यानी कि 2 दिन के किस तरह से स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए बीत रहे हैं उस पानी को पंप आउट करते हुए और दूसरी तरह की परेशानियों का सामना करते हुए। इट शोज देयर हार्ड वर्क, देयर रियल लेबर। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। कहता है लेकिन ये जो राहत भरी बात थी, जो रिलैक्स था, ये थोड़ी ही देर के लिए था। एट 4 PM, शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन bulking up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और कहता है उसके बाद 4 बजे ही जैसे ब्लैक क्लाउड्स जो है वो पीछे हमारी बिल्डअप होने शुरू हो गई, और 1 घंटे के अंदर अंदर हवा जो है वो वापस 40 नॉट्स, उसकी स्पीड की बात की जा रही है, पानी के वहाँ जो
समुद्र में जो स्पीड नापी जाती है, कहता है इस स्पीड के साथ जो है वो हवा विंड जो है वो चलने लगी और सी जो है वापस फिर हाइयर एंड हाइयर, जिस तरह से उसमें जो वेव्स का आपको बताया गया कि ऊपर नीचे पानी की जो होती हैं लहरें, वो चीज़ें फिर से शुरू हो गई। वेदर कंटिन्यू टू डिटेरिएट, और जो वेदर है वो लगातार और ख़राब होता चला गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डॉन ऑन Jan 5, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, कि हम दोबारा फिर वापस जो है बड़ी बुरी स्थिति में थे, पहले जैसे हालात हमारे फिर से बन गए। When I went in to comfort the children, जॉन आस्क्ड, और कहता है जिस समय मैं बच्चों को संभालने और उनको थोड़ा दिलासा देने के लिए गया, तो जो जॉन है इसका बेटा, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मर जाएंगे? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, तो कहता है मैंने उसको आश्वस्त करने की कोशिश की कि नहीं, हम बच जाएंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहता है कि लेकिन डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कहता है कोई बात नहीं पापा, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। एंड दिस इज़ द टाइटल फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन टेकन। तो ये स्टेटमेंट उस बच्चे की है, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, कहता है आप, मम्मी, शू उसकी बहन, और कहता है मैं खुद, अगर हम चारों इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते, आप इस बात को लेकर के चिंतित ना हो, परेशान ना हो। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. और कहता है मेरे पास उस बच्चे के इन शब्दों का कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि मैं उसको अब क्या कुछ कहूँ, कैसे क्या कुछ किया जाए। और कहता है मैं बच्चों के कैबिन को जिस समय मैंने छोड़ा, वहाँ से मैं वापस आया तो और ज़्यादा डिटरमाइंड था और ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे लड़ना है, इस सी से लड़ना है, इन कंडीशंस के साथ लड़ना है। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं सब कुछ अपना दांव पर लगा देना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged port, hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। और इसके अलावा फिर जो है ऊपर जाकर के कहता है जो स्टारबोर्ड साइड काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जो हिस्सा टूटने वाला था, उसको मैंने डिसाइड किया कि उसको बांध दिया जाए, तो दूसरी साइड का हिस्सा है जो ठीक है पूरी तरह से, ताकि जो आने वाली जो वेव्स वगैरह हैं वो उसको कम डैमेज कर पाएँ। और इम्प्रोवाइज तरीके से जो है, ठीक है, सी की जो वेव्स वगैरह थी उन्हीं का थोड़ा हेल्प यूज़ करते हुए कि ताकि वो उसके ऊपर उल्टी साइड में प्रेशर पड़े, उधर से प्रेशर ना पड़े, तो हैवी नाइलॉन रोप्स वगैरह के साथ और जो है तो 22 लीटर के प्लास्टिक के जो बैरल्स वगैरह हैं वो अपने साथ जो कैरी कर रहे हैं, उनकी हेल्प से जो है उन्होंने उसको बांध दिया जाता है। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। और कहता है फिर उस शाम दोनों हस्बैंड वाइफ, मैरी और ऑथर जो हैं वो साथ बैठते हैं, हाथों में हाथ डाल करके बैठे हुए हैं, और जैसे जैसे शिप का जो मोशन है, शिप आगे बढ़ता है और ज़्यादा उसके साथ पानी अंदर आता जाता है, यानी कि ये चीज़ पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो जो टूटे हुए प्लैंक्स वगैरह हैं वहाँ से पानी एंटर करता है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और ऑथर कहता है कि हम दोनों को ऐसा महसूस हुआ, हमें ऐसा लगा कि अंत जो है वो हमारा बिल्कुल नज़दीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ Jan 6 विद द wind easing आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। और कहता है लेकिन हमारी जो वेव वॉकर है वो इस तूफान से भी बच निकली, और अगली सुबह 6 जनवरी को हवा जो है वो काफ़ी राहत प्रदान करने वाली थी। तो कहता है मैंने फिर से दोबारा से अपने मैप वगैरह को और चीज़ों को रीड करने की कोशिश की। सेक्सटेंट की यहाँ बात की जा रही है, और ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके एंगल्स और डिस्टेंसेस वगैरह को मेज़र करने के काम आता है। उसके ऊपर जा कर के जो है वो अपने उन चीज़ों को स्टडी करता है, मेज़र करता है, वापस अपने चार्ट रूम में जाता है, फिर वर्क करता है उन विंड की स्पीड्स वगैरह को लेकर के कि क्या कुछ स्पीड है और हम किस स्पीड से आगे बढ़ें, कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्या से क्या कुछ होगा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उस पानी के बहाव में और उन चीज़ों में कि हमारी वास्तव में इस समय पोजीशन क्या है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर
in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की गई थी पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और यहाँ बात की जा रही है, यहाँ उसका वो डायमेंशंस, वो मेजरमेंट्स बताई गई हैं, यानी कि ये जिस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं उसका साइज़ क्या है, 65 किलोमीटर, और ओशन 150,000 किलोमीटर। तो इसलिए ऐसा कहा गया था। While I was thinking, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी। और कहता है जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा हूँ, तो उसी समय जो है इसकी बेटी शू मूविंग पेनफुली, यानी कि वो काफ़ी दर्द में है, परेशान है। जैसा बताया गया उसका कि हेड पूरी तरह से जो है यहाँ से स्वेलिंग हो गई थी, काफ़ी सूज गया था, हाथ के ऊपर भी उसके जो है एक बड़ा सा कट है। तो वो आती है अपने पापा के पास। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, कि उसके हेड की जो लेफ्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा स्वॉल हो चुकी थी। उसके जो ब्लैक एंड आइज़ हैं नैरो टू स्लिट्स, स्लिट्स बिल्कुल कहीं जो बारीक सी जगह, यानी कि उसकी आंखें इतनी सूज गई हैं कि अगर हम जिस तरह से आंख खोलते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी आंख खोल पा रही हो, हल्की सी। स्लिट दरार को कहा जाता है, जो बिल्कुल पतली सी दरार हो उस चीज़ को लेकर के। तो इस तरह से ऐसा नज़र आता है। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। तो ये बच्ची जो है वो अपने पापा को एक कार्ड देती है जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। और उसने जो है उस कार्ड के फ्रंट में जो है ऑथर और उसकी वाइफ जो है, यानी कि उस लड़की ने अपनी मदर और फादर के दोनों के जो हैं कैरिकेचर्स, फिगर्स बनाई हुई हैं वर्ड्स के साथ। क्या लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ क्या लिखा गया है, और कुछ कार्टून जो कैरिकेचर्स होते हैं, जो कार्टून फिगर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसको देख करके हंसी आए, जो हम कार्टून जिसे कहते हैं, इस तरह से उनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं। और लिखा हुआ है कि हेयर आर सम फनी पीपल, कि देखिए यहाँ कुछ ये फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया? आई लाफ दे लॉट एज वेल, कहती मैं तो बहुत हंसी हूँ। इट मीन्स यहाँ वो अपने पेरेंट्स को एक तरह से थैंक कह रही है कि आप लोगों ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ पापा मम्मी। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसलिए ये कार्ड जो था थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक, समहाउ वी हैड टू मेक इट। फिर ऑथर कहता है हमें कैसे ही ना कैसे बचना है, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ ये देखिए कि आप दोनों ही बच्चे जो हैं इस तरह की कंडीशंस में भी कितने सपोर्टिव बने हुए हैं, कितने पॉजिटिव अप्रोच के हैं। और ये उनकी जो पॉजिटिवनेस है, ये उनके पेरेंट्स को कितनी हिम्मत दे रही होगी, कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होगी। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, कहता है मैंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया, फिर रीचेक किया, बार बार पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद। कहता है वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, कहता है हम अपना जो मेन कंपास था वो भी खो चुके थे। पीछे जिस तरह से वो पलट गया था उस समय उनका बोट जो है शिप उस समय। तो कहता है आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो कहता है मैं जो यूज़ कर रहा था वो हमारा एक्स्ट्रा था, स्पेयर में था, और जो पूरी तरह से करेक्ट नहीं किया गया था मैग्नेटिक वेरिएशंस वगैरह को लेकर के। तो इसलिए उसे जो अपनी कैलकुलेशंस बार बार चेक करनी पड़ती हैं कि क्या ये पूरी तरह से सही है या इसमें कहीं कोई किसी तरह की एरर तो नहीं है। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Ocean। और उसके बाद कहता है फिर थोड़ी बहुत मार्जिन छोड़ करके कि हो सकता है कहीं छोटी मोटी कोई चूक हो, और फिर एस्टिमेट लगा करके कि इस में यहाँ जो वेस्टर्ली करंट्स हैं, जिस तरह से जो हवाएं बहती हैं, ठीक है, इस इंडियन ओशन के पार्ट में, उन चीज़ों की भी थोड़ी गुंजाइश रखते हुए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या कुछ स्थितियाँ रहेगी। तो कहता है मेरी कैलकुलेशंस थी कि लगभग 2 बजे, अबाउट 2 PM, सॉरी कैलकुलेशंस आगे बताएगा कि अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि वो 2 बजे ऊपर डेक के ऊपर जाता है और वहाँ जाकर के लैरी को कहता है कि अब जो वो स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए हैं कि इसको 185 डिग्री के ऊपर जो है घुमाओ। इफ़ वी वर लकी, कि अगर हम भाग्यशाली हुए, लकी हुए, तो हम जो हैं शाम तक 5 बजे तक आइलैंड तक पहुँच जाएंगे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन दैट आई डिडेंट फील, यानी कि इसके जो बताने का जो तरीका था भी हम भाग्यशाली हुए। इट मीन्स कि देखो मैं श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन अगर हम भाग्य ने हमारा साथ दिया, सारी चीज़ें हमारी फेवर में रही, कंडीशंस ठीक ठाक रही, तो हम 5 बजे तक आइलैंड तक पहुँच जाएंगे, हमें वो आइलैंड नज़र आने लगेगा। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो
और कहता है फिर थोड़ा भारी मन से, थोड़ा सा दुखी भी है, कहता है मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक के ऊपर चढ़ा, एंड अमेजिंगली, और कहता है बड़ी अमेजिंग बात है, बड़ी हैरानी भरी बात है कि इस विपरीत हालात में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आई डॉज्ड ऑफ, कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। When I woke it was 6 PM, और कहता है जिस समय मैं उठा मेरी नींद खुली तो 6 बज गए थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होना शुरू हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और कहता है मैं जानता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया होगा, क्योंकि अब 1 घंटा समय ज़्यादा हो चुका है, कि दूसरे लोगों ने, उन्होंने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो इसके पास है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और कहते हैं हमारे पास जिस तरह की जो सेल बची हुई है उसके साथ हम वेस्टर्ली विंड्स को बीट करते हुए, यानी कि उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकें, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम अब 1 घंटा फिर वापस आएँ उस डायरेक्शन में और वहाँ तक पहुँचें। वो सारी चीज़ें इन हालात में पॉसिबल नहीं थी। तो एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और कहता है उसी पल जो है एक टशल्ड हेड की यहाँ बात की गई है, यहाँ गंदे से सिर की बात की जा रही है, जो काफ़ी समय से जो है प्रॉपरली हेयर वेयर जो है वो फॉर्म नहीं हो और नहीं हो। तो कहता है एक जो है इस तरह का सिर हेड जो है वो मेरे बंक के पास में मुझे नज़र आया, और वो है इसका बेटा जॉनथन। वो कहता है कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसकी बेटी जो है शू, वो भी अपने भाई के पीछे ही खड़ी हुई थी। तो कहता है मैंने पूछा वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, भाई अब मुझे हग क्यों किया जा रहा है, मुझे क्यों हग दिया जा रहा है भाई, ऐसे क्या बात होगी, क्योंकि ये तो एक तरह से जॉय को एक्सप्रेस करने का वे माना जाता है। तो उसका जो बेटा है वो रिप्लाई करता है कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी हैं। कहता है नो टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, कहता है नहीं, कम से कम देख जॉन, मुझे आज तो नहीं लगता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है, वो जो सो गया और वो आइलैंड मिस हो गया होगा। तो कहता है नहीं, कम से कम आज तो मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, आज तो मैं इस बात का ऐसा दावा नहीं कर सकता। वाई यू मस्ट बी सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, और एक इस तरह की आवाज़ में की जिसमें ये झलके कॉन्फिडेंस झलके कि अरे क्यों नहीं, यानी कि वो जानती है कि वो जो कह रही है उस बात के पास, उसके पास कोई लॉजिक है, रीज़न है, कि क्यों नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है, हम वहां पहुंच गए हैं, उस आइलैंड तक हम पहुंच गए हैं। तो चिल्लाते हुए खुशी से व्हाट, क्या, कहता है इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ, और वो दोनों एक साथ इकट्ठे एक सुर में बोलते हैं, बिल्कुल बाहर चल के देखिए आप, सामने हैं हमारे एज बिग एज बैटल शिप। एक जो बैटल शिप होता है, युद्ध वगैरह के लिए जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिनके ऊपर सॉरी आप फाइटर्स वगैरह को भी लैंड करवा सकते हैं, काफ़ी सारे सोल्जर्स वगैरह को कैरी किया जा सकता है, दूसरी मशीन वगैरह जो हैं उन चीज़ों को, इस तरह से जो बड़ा सा शिप होता है, कहता है उसका साइज़ बिल्कुल एक बैटल शिप के साइज़ का है आइलैंड। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एमस्टरडम, और कहता है मैं तुरंत भागा बाहर की तरफ डेक के ऊपर, और वहाँ जा कर के देख करके पूरी तरह से एक टकटकी, और बड़ी राहत मिली उस बात से, और उसकी वो जो कंप्लीट आउटलाइन जो है एमस्टरडम की वो दिखाई उसे दे रही थी। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और वैसे तो अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो ये ब्लीक पीस है, डार्क ब्लैक कलर का पीस, क्योंकि ये सारा का सारा एक वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, और जिस पे बहुत नाम मात्र की वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है वहाँ, वनस्पति वगैरह। लेकिन इसको देखिए ऑथर कंसिडर करता है द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ बिकम द सर्वाइवल पॉइंट फॉर देम, क्योंकि ये आइलैंड उनके सर्वाइवल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, और ये सर्वाइवल पॉइंट बन गया है उनके लिए। तो यही कारण है कि इस आइलैंड को मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड कह करके बुलाया गया है, अदरवाइज इट्स ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ volcanic rock with little vegetation. We anchored offshore for the night, and the next morning all
28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और कहता है उसके बाद हमने जो है वहाँ ऑफ शोर होकर के उतर करके जो है एंकरिंग वगैरह की, अपने वेव वॉकर को जो है उसको टाई अप वगैरह किया, बाहर बांध दिया जिस तरह से, ताकि समुद्री वेव्स वगैरह जो है लहरें हैं उसको बहा करके ना ले जाएं ना के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग पर जो है, क्योंकि सुबह शाम हो गई थी और है, तो अगले दिन उस आइलैंड के ऊपर टोटल 28 इनहेबिटेंट्स की बात की गई कि 28 लोग हैं और वो सारे के सारे जो हैं वहाँ उनको वेलकम करते हैं, देख करके खुश होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और कहता है दोबारा से अपने पैरों के नीचे ज़मीन को महसूस करके, अदरवाइज कितने लंबे समय से जो हैं वो लोग पानी में ही थे। तो कहता है माई थॉट्स वर फुल ऑफ Larry and Hobby, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. और कहता है उसके बाद उन लोगों के प्रति लैरी एंड हॉबी, जो इतने विपरीत हालात में भी पूरी तरह से चीयरफुल बने रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव अप्रोच रखी अपनी, जो हालात पूरी तरह से स्ट्रेसफुल थे, सारी स्थितियां उनके अगेंस्ट में थी, और फिर उसकी वाइफ के प्रति थैंकफुल है। मैरी जो हर समय उस व्हील को संभाले हुए थी, यानी कि जिस समय वो स्टार्टिंग में व्हील को उसको सौंप करके जाता है और उसने वो सारी जो प्रोटेक्शन वगैरह और उन चीज़ों के लिए अरेंजमेंट्स की और चीज़ें की, उस समय हर्बी और लैरी जो हैं वो वाटर को पंप आउट कर रहे थे। ये लोग सारी समय दिन रात जो है वाटर को पंप आउट करते हैं और मैरी जो है उसी ने उस स्टीयरिंग व्हील को संभाला था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस क्रूशियल आवर्स में, उस डिफ़िकल्ट समय में उन लोगों को याद करते हुए जो है, कहता है उनको लेकर के एक सम्मान और थैंकफुलनेस जो है, उनसे भरे हुए विचार उनके प्रति जो है। और मोस्ट ऑफ ऑल, और कहता है सबसे बढ़ करके, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी। और कहता है फिर सबसे ज़्यादा मैं उस 7 वर्षीय लड़की के लिए, अपनी बेटी के प्रति, जो अपनी चोट के बारे में इसलिए नहीं बताती है कहीं हम ज़्यादा चिंतित ना हो जाएं, परेशान ना हों। और देखिए इसकी चोट को लेकर के बाद में बताया गया है कि विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, कि उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट हो गया था उसको रिमूव करने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस हुए, सर्जरी हुई उसकी। और उस 6 वर्षीय बच्चे के लिए, लड़के के लिए, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता, जो ये कहता है कि अगर हम सारे इकट्ठे हैं पापा, आप, मम्मी, बहन और मैं, तो हमें जो है मरने से डर नहीं लगता। तो ये जो वर्ड्स थे उसको जिस तरह की जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, जो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें हैं। एंड दैट्स ऑल विद योर दिस चैप्टर, इट्स द रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है ये आपका। और देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि ये चैप्टर आपको क्या कुछ सिखाता है, क्या कुछ कहता है, तो जो हालात जिस तरह के रहे, जिस तरह की टफ सिचुएशंस रही, एंड द वे ऑथर हैड टैकल्ड ऑल दीज थिंग्स, तो इट्स अ ग्रेट टीचिंग फॉर अस, ग्रेट लर्निंग। काफ़ी कुछ सिखाता है ये हमें कि हालात विपरीत कितने ही हों, हमें किस तरह से उन्हें फेस करना चाहिए, किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव बने रहें, चीयरफुल बने रहें, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है, दोज हु स्ट्रगल, दोज हु वर्क हार्ड। वेल, इसके बाद जो आप क्वेश्चंस करेंगे बेटा, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट को देखिए। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। ये स्टार्टिंग में कैसे क्या कुछ उसने प्रिपेयर्ड किया, पहले से जो तैयारियां की। उसके बाद टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, बाद में जिस समय उनका वो जो राइट साइड वाला हिस्सा टूट जाता और काफ़ी पानी अंदर आ रहा था, तो उस समय कैसे क्या कुछ इंतजाम किए गए, वो सारी चीज़ें लिख देंगे। मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th जैन, तो पर्टिकुलरली वहाँ जो डेट के अकॉर्डिंग बात की गई है चैप्टर में, उनकी मेंटल कंडीशंस को बताएं, किस तरह से वो कितने पॉजिटिव थे, थोड़े हैं जहाँ होपलेस हो जाते हैं, अगर वो भी इसमें इंक्लूड है तो उसको नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज सारे के सारे जो हैं वो किस तरह से मेंटल कंडीशंस में थे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव। और अगर आप लिखना भी चाहें तो देखिए, जहाँ जैसे आपका चैप्टर चलता है और जहाँ एक स्टेज, एक इवेंट कंप्लीट होता है, उसके नीचे लाइंस लगाई गई हैं, तो ये चैप्टर जो है वो आप 3 डिफरेंट सेक्शंस में बांट सकते हैं। तो उन डिफरेंट सेक्शंस के लिए आप अलग अलग टाइटल जो है वो सजेस्ट करेंगे।
वो किस तरह से कैसे क्या कुछ इंडिकेट करता है, फर्स्ट फेज़ कहाँ तक है, वहाँ उसमें किस तरह से उनका जो है स्मूथ है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है, फिर सेकंड में स्ट्रगल है, और फिर फाइनली थर्ड में कैसे क्या कुछ। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when they faced danger? जिस समय उन्होंने खतरे का सामना किया तो उनमें किस तरह से क्या कुछ डिफरेंस था, वो चीज़ें लिखेंगे। बच्चे जो है नो डाउट कि दे वर नॉट एबल टू हेल्प फिजिकली, लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थे और उन्होंने मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड की, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया अपने पेरेंट्स को, और पूरी तरह से उनको चिंता मुक्त कर दिया। और बाकी लोगों ने, चार जो हैं एडल्ट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि हाउ ऑल दे हैड डन, कि 2 दिन तक जो है वो खाना खाए बिना किस तरह से लगे रहते हैं उन हालात में। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस? और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी इस चैप्टर की थीम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, these are only for discussion purpose, कि now we are not in class but you try to understand the question and why such kind of things happen। ठीक है, कि जो इस तरह के हाजिडस एक्सपीरियंसेस हैं, जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जब हम उनका सामना करते हैं और ख़ास करके जहाँ डेथ भी हो सकती है, तो ये इस तरह की चीज़ें हमें जीवन में क्या सिखाती हैं। विचार करें इसके ऊपर, सोचें आप कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ में कैसा इंसान बनाते हैं। Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risks involved? और पता होता है कि जो इस तरह की एडवेंचरस एक्सपीडिशंस हैं उनमें रिस्क है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, उसके बावजूद भी लोग जो हैं इसका हिस्सा क्यों बनते हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं। यानी कि जिस तरह से इस व्यक्ति की बात की जाए तो वो एक बिजनेसमैन था, उसका अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इस तरह की वॉयज करने की ठानी और ऐसा कुछ किया, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, इस तरह के लोगों का क्या कुछ टेम्परामेंट होता है, क्या सोच होती है, किस कैरेक्टर के वो लोग बने होते हैं, वो चीज़ें जो हैं आप करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, दीज आर योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस। डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। That's all for today, and with this chapter is your complete. Now you can write down the question and answers in your notebook, and even then if you have any kind of problem relating to understanding part or regarding the question and answers, you can ask me. Thank you, have a nice time, enjoy yourself.